transmitted, a source coding is there, then a channel coding is there. Okay, then you modulate it. I am coming to each block again and again. Let's draw it. So till now, what we discuss in class is, we leave this part, source coding and channel coding. We start with the modulation part. Now, modulation consists of two parts. The modulation consists of two parts. It consists of a baseband modulation and a distal carrier modulation. A baseband modulation and a distal carrier modulation. Baseband modulation and a distal carrier modulation. Okay, you have studied this in the first part of the syllabus. In baseband modulation, you have studied the line codings. The first task is to convert the digital bits 1010 into electrical format. Okay, so we have studied electrical format. So first thing is line coding. We convert the digital bit into electrical format, and that is a line coding. After electrical signal is available, we modulate it to analog carriers or to sinusoidal carriers of high frequency to transmit it on the channel. So distal carrier were ASK, PSK, FSKs, and higher modulation scheme like QPSK, MPSKs, and everything. Okay, and then we transmit it on the wireless channel or the wired channel, and the same repeats in the receiving side. But till now, what we have done is, we have left this part unknown. Okay, so there are two main blocks, that is a source coding and channel coding, available in your digital communication system. One of the advantages of digital communication over analog communication was that it gives you the flexibility, and it gives you error correction and detection capabilities. That means analog में एक बार signal गलत हो गया, you cannot recover it back. But in digital, there is a capability of a particular signal to correct one or two or n number of bits in the receiving side. So ये कैसे possible है? This will be studied in this part of the syllabus. This is not in your syllabus. The source coding is not in your syllabus, but is an important part for you to understand that source coding is compression. In broader terms, it can be understood as a compression. What is compression? You know that the main constant in a communication system is the channel. The power, the bandwidth, and everything is constant. The channel has a constant of bandwidth limited. So what we have to do, we have to utilize it efficiently, spectrally efficient करना है हमको system को. So how to do that? यदि हमने सब bit को, यदि suppose we have 100 number of symbols or 100 number of data packet symbols, I will be calling it symbols, and सबको if हमने 4 bit award कर दी, for 100 symbols I will be requiring whatever it may be, I am awarding 4 bits for each. So I will be requiring a minimum of 400 symbols. I will be requiring a minimum of 7 bits, okay, 128. Okay, so the number of bits that I will be transmitting is 700. यदि हमने 100 symbols transmit किया और 100 तरीके के symbols हैं, okay, then I will be requiring a 700 bits transmission system. But हमको ये भी पता है कि in a particular system, transmission system, कोई symbol बहुत high priority के होते हैं या high probability के होते हैं और कुछ low probability के होते हैं. For example, in our English language, vowels are repeated more frequently. Vowels बहुत higher probability के संग repeat होते हैं and consonants बहुत low probability के संग repeat होते हैं. So जब हमने ये देखा कि the probability of all the symbols are not same, what we can do is जो low probability के संग repeat होते हैं, जो low probability के संग repeat होते हैं, जो words low probability के संग repeat होते हैं, like Z, Z हो गया,
y हो गया, उनको लो सिंबल्स दे दे, लो बिट्स दे दे। दैट मींस y और z को सपोज हमने 1 बिट दे दिया, सॉरी let me correct it, let me take a, okay, so we have two symbols, high probability symbol and a low probability symbol. हाई प्रोबेबिलिटी सिंबल हमने कह दिया वावल्स है और लो प्रोबेबिलिटी सिंबल्स है जो कॉन्स्टेंट्स हैं। तो जो चीज ज्यादा रिपीट हो रही है उसको हम क्या करेंगे, लो नंबर ऑफ बिट्स दे देते हैं, लो बिट्स दे देते हैं। यानी ए ई आई ओ को सपोज हमने दे दिया 1 बिट पर सिंबल या 2 बिट्स पर सिंबल, ठीक है। और जो बहुत कम रिपीट हो रहे हैं उनको हम लोगों ने 4 to 5 बिट्स पर सिंबल दे दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि इन अ सपोज अ सेंटेंस, जो कि सेंटेंस बनेगा या डेटा बनेगा, उसमें क्योंकि ए ई आई ओ यू दैट इज वावल्स आर रिपीटेड मोर फ्रिक्वेंटली, जो नंबर ऑफ बिट्स होगा एक सेंटेंस का एवरेज बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ने क्या किया है, जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं उनको कम बिट से रिप्रेजेंट किया है। यदि सबको एवरेज कर दो, सपोज हम कहते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल लो, 26 होते हैं, 26 के लिए 26 यूनिक सिंबल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, सो वी विल बी रिक्वायरिंग एटलीस्ट 5 बिट्स, ठीक है, 5 बिट चाहिए। अब कोई भी सेंटेंस है, सपोज कोई भी एक वर्ड है लाइक इंट्रोडक्शन, इट इज इंट्रोडक्शन, ओके, सो इफ वी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, suppose 12 alphabets are there, so I will be requiring 12 into 5 bits to represent this, ठीक है, इतनी बात। अब ये तो हो गया यूनिफॉर्म कोडिंग। बट इफ हमने कहा कि हमारे पास आई ओ यू आई ओ 5 वॉवल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, उनको हम लोग रिप्रेजेंट कर दे 2 बिट्स पर सिंबल से, और बाकी कॉन्स्टेंट्स को बेस्ड ऑन देयर यूज हम लोग सपोज 4 to 5 कर दे, यदि हम 6 भी कर देते हैं सपोज, ठीक है, तो जो एवरेज होगा पूरे वर्ड का वो कम हो जाएगा। लाइक 2 into 5 10, 2 into 5 10, और बचे कितने 7, 7 into 6 42। So in this case yes, if I take it 5, so it will be 35 suppose here, okay, 35 here, and 2 plus 5 this 45, and here it will be 60, ठीक है। तो हम लोग जो वेरिएबल कोडिंग करेंगे हम सोर्स कोडिंग कहेंगे। सोर्स कोडिंग इज वेरिएबल कोडिंग, यानी जो चीज ज्यादा रिपीट हो उसको ज्यादा रिपीट हो उसको कम सिंबल्स दो, कम बिट्स दो, एंड जो ज्यादा कम रिपीट हो रहे हो उसको ज्यादा बिट्स दो पर सिंबल। ये था सोर्स कोडिंग। नेक्स्ट मूविंग टू द चैनल कोडिंग। अब ये चीज हमारे सिलेबस का पार्ट है। चैनल कोडिंग इज, when we are talking about the channel coding gives you error correction and detection capabilities. So channel coding strives कि सोर्स कोडिंग से हम चैनल को एफिशिएंटली यूज करने की बात कर रहे थे, नंबर ऑफ बिट्स कम करने की बात कर रहे थे। बट वी आल्सो नो फ्रॉम शैनन थ्योरम दैट इफ वी ऐड रिडंडेंट बिट्स, इफ वी ऐड एक्स्ट्रा बिट्स, देन वी कैन इंक्रीज द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटीज। या हम ये कह सकते हैं कि by adding a redundant bit we can decrease the probability of error or bit error rate of a particular system. So हमने redundant bit add किया तो 100% है कि bit चैनल की efficiency कम कर रहे होंगे हम, क्योंकि instead of transmitting 4 important data I am transmitting suppose 7 data, तो 4 बिट काम किए, 3 redundant bit add कर दिया, so I am compromising with my channel efficiency. बट फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि वी आर गिविंग आवर सिस्टम डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटीज। अब कैसे होगा? दो पॉसिबिलिटीज है, एरर डिटेक्शन कोडिंग एंड एरर करेक्शन कोडिंग। सपोज अ सिस्टम, हम चाहते हैं कि ज्यादा चैनल बैंडविड्थ खराब ना हो, देन वी गो फॉर अ लिटिल लेस रिडंडेंट बिट्स, दैट इज एरर डिटेक्शन कोडिंग। इसमें क्या होता है, देयर इज अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर. The receiver has error detection capabilities. Okay, it can detect, the number of bits is such that it can detect errors, but it cannot correct. हम लोगों को ये कर सकता है कि it can detect, यानी parity coding। सपोज हमने कहा कि odd parity दोनों के बीच में सिंक हो गया,
सो जब यहाँ से ट्रांसमिट किया गया और वहां पर बिट रिसीव हुई, वो चेक करेगा कि जो रिसीव बिट्स हैं वेदर दे आर इन ऑड पैरिटी और नॉट। अब ऑड पैरिटी पे है, सपोज हमने ट्रांसमिट किया, देयर इज अ सिंबल, लेट मी टेक अपॉन, ओके, हम लोग ने 4 सिंबल ट्रांसमिट किया, 1 1 1 0। हम लोग ने बात कर ली है कि वी आर ट्रांसमिटिंग इन ऑड पैरिटी, और रिसीव हुआ 1 0 0 1, सपोज 1 0 0 1 रिसीव हुआ, तो उसको पता है कि इट शुड बी इन ऑड पैरिटी, बट ये है इवन पैरिटी, दिस इज इवन पैरिटी। तो उसको ये पता चल चुका दिस इज इन रॉन्ग फॉर्मेट, दिस इज 100% डेटा इज रॉन्ग, बट इट कैन नॉट करेक्ट इट। वो करेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज इट कैन ओनली डिटेक्ट, ही डजंट नो कि बिट यहाँ गलत हुई है, यहाँ गलत हुई है, या यहाँ गलत हुई है, या फर्स्ट बिट भी गलत हो सकती है। बट ये पता चल चुका है कि बिकॉज इट इज नॉट अ इवन पैरिटी, इट इज नॉट अ ऑड पैरिटी, देयरफॉर इट मस्ट बी अ रॉन्ग सिग्नल और रॉन्ग सिंबल। सो वो क्या करेगा, it will send a negative acknowledgement to the transmitter, that means he has not received the correct data। उसको कहते हैं ARQ, automatic repeat request, ठीक है। so if I am sending a negative acknowledgement, the transmitter will again transmit the same packet, again I will check, and so on until and unless I give the transmitter a positive feedback, that is acknowledgement। जैसे उसके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, दैट मींस उसके पास एक सही पैकेट्स मिल गए हैं, वो नई स्ट्रीम ऑफ डेटा भेजना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो ये था ARQs एंड एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटीज। सो फीडबैक चैनल रिट्रांसमिशन होता है, क्वालिटी पेड बाय डिले, यस, बिकॉज वी हैव इम्प्रूव द क्वालिटी, गलत बिट तो नहीं रिसीव करेंगे, बट उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, in case of a fault, in case of error, we have to retransmit again and again और wait for acknowledgement। so वो क्या create करेगा, एक delay create करेगा। next possibility, okay, so next possibility is error correction coding। थोड़ी और redundant bits add करके we give a system a error correction coding और error correction capabilities, okay, error correction capabilities। अब एरर करेक्शन कैपेबिलिटीज क्या है, वी आर एडिंग सच नंबर ऑफ रेडंडेंट बिट्स सो दैट रिसीविंग एंड पे एक्नॉलेजमेंट भेजने की जगह वो खुद एरर करेक्ट कर ले, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड एरर करेक्शन। जो पहले पढ़ा था आपने एरर डिटेक्शन कोडिंग, वो बैकवर्ड एरर करेक्शन है, क्योंकि वहां पर रिसीविंग एंड को वापस रीट्रांसमिट करवाने के लिए रिक्वेस्ट करवानी पड़ती है। तो एरर करेक्ट कौन कर रहा है, ट्रांसमिटिंग एंड, क्योंकि वो बार बार भेज रहा है जिससे कि एरर ना हो। फॉरवर्ड एरर करेक्शन का मतलब क्या है, रिसीविंग एंड खुद अपने आप एरर को डिटेक्ट करे एंड देन करेक्ट करे, ओके। सो दिस इज नोन एज फॉरवर्ड एरर करेक्शन कोडिंग। सो इन दिस नो फीडबैक चैनल इज रिक्वायर्ड, ओके, एंड द क्वालिटी पेयर इज बाय रिडंडेंट बिट्स, यानी क्वालिटी तो इंप्रूव किया बट द नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स विल बी इंक्रीज्ड मल्टीफोल्डेड। अभी हम बात करेंगे लास्ट में फॉर्मूला कि हाउ मेनी number of bits is required to provide a detection capabilities and how number of bits are required, how many number of bits are required to give correction capabilities, ठीक है। तो दो होंगे, डिटेक्शन एंड करेक्शन। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर कोड के पास बोथ हो, मतलब सपोज अ डिटेक्शन कोड इज देयर, उसके पास करेक्शन कोड हो, ये जरूरी ना हो, ओके। सो फॉरवर्ड एरर करेक्शन को यदि हम क्लासिफाई करना चाहें तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज कन्वोल्यूशन कोड्स एंड ब्लॉक कोड्स। Convolution code is coding a stream of data continuously, यानी हम हर एक बिट को continuously कोड करेंगे into n number of bits, okay। ब्लॉक कोड्स में क्या करते हैं हम, एक स्ट्रीम ऑफ डेटा आता है, we chunk it into blocks, we उसको हम लोग ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं एंड हर ब्लॉक को यूनिकली कोड करते हैं। सो लीन ब्लॉक कोड्स की जब हम बात कर रहे हैं, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट a stream of data chunked into cut into blocks, हर एक ब्लॉक को यूनिकली कोड करेंगे। कन्वोल्यूशन कोड्स की जब हम बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस डेटा जिसमें हर एक बिट को यूनिकली कोड किया जाएगा, यानी वहां पे हर एक बिट की बात कर रहे होंगे, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ बिट्स की बात कर रहे होंगे। सो ब्लॉक एंड कन्वोल्यूशन।
Then we talk about systematic and non-systematic codes. When we talk about systematic codes, उसमें क्या होता है, आपका डेटा और चेक बिट्स दोनों अलग अलग दिखाई देंगे. It may be कि data followed by a check bits. Check bits का मतलब redundant bits. Okay, added to increase the detection and correction capabilities. So systematic का मतलब ये हुआ कि there the data, the information data, the information content या message पहले आएगा followed by check bits या check bit followed by message bits. Okay, हम message use करेंगे, data word use करेंगे and so on. Non-systematic, they will be jumbled. यानी check bits will be interleaved in the message itself. यानी एक bit message followed by एक bit check bit and so on. Interleaving हो रही होगी. You cannot correct. You cannot see the code and tell that this is message, this is check bits. धीरे धीरे हम लोग सब कुछ पता चल जाएगा what is systematic, what is non-systematic. And then comes the code predicts. हम यहाँ पे binary coding की बात करेंगे. So we are not going into ternary and octal codes. We are only dealing with zeros and ones. ठीक है. आप 7th semester में if you are taking error correction and detection code as your subject, then you will be dealing with ternary and octal codes. And the last is linear codes and the non-linear codes. Linear, अभी तक हमको पता ये word linear means linear combinations. Okay, यानी दो चीज को add करके एक तीसरी चीज बन रही है and that is also a symbol. Then it is called a linear part. मतलब दो codes के बीच में relationship है. That is a linear code. Okay, and non-linear if that doesn't exist. In error correction detection codes, हम हमेशा याद रखेंगे कि we will be using modulus 2 addition rather than this. हमेशा याद रखिएगा when we are talking about addition in error correction and detection or channel coding, we are not talking about this, we are talking about mod 2, that is XOR. Okay, so suppose I am saying 1 plus, if I am saying 1 plus 1, I will be getting a 0. Okay, so we will be using XOR as a addition. तो हम जो लीनियर कोड्स की बात कर रहे हैं दैट मींस दो कोड्स के बीच में जो एडिशन हो रहा होगा वो XOR एडिशंस हो रहे होंगे रादर देन अ सिंपल एडिशन. ठीक है, ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं ऐड करूंगा. दैट मींस आई एम सेइंग मॉडुलस 2 एडिशन, mod 2 addition. Okay, this is known as mod 2 addition. I will be using this. So linear codes के तीन क्राइटेरियाज हैं. सम दो कोड्स को ऐड करके तीसरा कोड बनाया जा सके. सम ऑफ एनी टू non-zero codes, sum of two non-zero codes is another code word. First, contains all zero code word. That means in a linear code there must be a all zero code word. यानी एक ऐसा होगा जिसमें सारे zeros होंगे. And last, a code word that can be summed with another code word to form 0000. Like suppose I am saying I am taking suppose this data 0110, and then I will be saying I will be taking 0 here, 1 here, 1 here, a 0 here. Suppose I am saying okay, so this will be on adding, it will be 0000, something like this. Okay, so adding two codes I will be getting a all zero code word. ये भी होना चाहिए. If it is, then it is definitely a linear code. तीन क्राइटेरिया है. फर्स्ट क्राइटेरिया दो कोड्स मिलके एक तीसरा कोड बनाए. सेकंड क्राइटेरिया देयर मस्ट बी अ ऑल जीरो कोड वर्ड. थर्ड क्राइटेरिया दैट टू कोड वर्ड्स व्हेन एडेड, कोई भी दो हो सकते हैं, मस्ट यील्ड अ ऑल जीरो कोड वर्ड, कोई भी. ठीक है. Okay, so next going into the detail, a difference between block codes and convolution codes. Difference क्योंकि हम लोग यही हमारे दो syllabus के parts हैं. We will be dealing with block codes and the convolution codes. In block codes, we will be discussing linear codes and the cyclic codes. In convolution codes, I will be discussing trellis coding and simple convolution codes. Okay. Okay, so block codes and convolution code. First thing is, suppose there is k data digits or k data bits. Okay, and we have to encode them into n digits or n bits. Digits because it may be of another radix. I am using that word. So if there are k
k मैसेज बिट्स थे उनको n कोड बिट्स में कन्वर्ट करना है, then n is definitely greater than k, then what we will be doing is we will be breaking the codes into k bits. मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा था of 1000 bits, 10,000 bits, but what we will be doing, we will be dividing that stream into k bits block, that means block of length k bits. हर k bits को n bit में मैप करेंगे and this is known as linear block or block codes. Okay, so यहाँ पर क्या होगा, block बनेगा, I will be using a block. पहले हम डेटा को ब्लॉक में तोड़ेंगे. First we will be, you can turn on your mic whenever you have a query. Okay, so I will be saying that I will be first dividing my stream of data into blocks, and then each block will be coded, each block of k bits will be mapped into n digits. ठीक है, सिंपल सी बात है. ठीक, and next convolution codes. In convolution codes what happens is stream data आ रहा है, okay, and every digit will not be only dependent upon the present bit. In block codes क्या होता है, सिर्फ present पे dependent होता है, जो k bits आई उनमें coding कर रही. Okay, so in convolution code what happens is a stream of data comes and each bit has to be coded, and if each bit or a 2-bit whatever the system is, that will not depend upon the present bits but also depend upon the past bits. यानी n-1 previous bit पे भी dependent है कि what is the code word. block codes सिर्फ और सिर्फ present पे dependent है, convolution code present and past both पे dependent है. ठीक है, that means convolution code is a memory code जिसमें memory भी होती है. In block codes there is no memory element. याद रखिएगा, block code doesn't have a memory, and in convolution codes there is a memory available. ठीक है, यानी suppose हम कहते हैं for example एक simple system लेते हैं. Let me take a simple system. Okay, yes, so एक shift register है. Okay, there is a shift register in which data is coming from, suppose here. Okay, data is coming from here, and what happens is I am using these three and XORing them to form my code 1 C1. Okay, similarly I am adding these two to make code word C2. ठीक है, चलो दो बन गया, C1 C2. पहले बिट आई, सबसे पहले मान के चलते हैं कि all the bits are zeros. All the bits are 0. When the first bit comes, suppose I am transmitting 101. I am saying a data stream is coming और data stream कुछ 101 के फॉर्म में आया, तो सबसे पहला जो डेटा आया there comes a 1. ठीक, जब ये 1 आया, this is my present bit, this is my 1 bit past, this is 2 bit past. ठीक, 1 आया, so first bit C1 will be equal to 1 and C2 will be equal to 0. So for the first one I am transmitting 1 0. जहां कंफ्यूजन है पूछ लेना, कन्वोल्यूशन कोड्स को हम बाद में फुल डिस्कस करेंगे. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल व्हाट इज अ ब्लॉक कोड एंड व्हाट इज अ कन्वोल्यूशन कोड. ठीक है, ब्लॉक कोड में हम क्या करते हैं, 101 को सीधा उठाते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ यूनिक कोड. तो जब भी 101 एनकाउंटर होता स्ट्रीम में, इट विल ऑलवेज यील्ड अ सिमिलर कोड. ब्लॉक कोड में क्या होगा, 101 जहां पे भी एनकाउंटर होगा स्ट्रीम में, वो हमेशा यील्ड करेगा सेम कोड वर्ड. बट कन्वोल्यूशन कोड में क्या होता है, जैसे सपोज 1 आया, सो फर्स्ट डेटा विल बी 10. नेक्स्ट जब 0 आया, सो दिस बिकम्स 0, दिस बिकम्स 1. शिफ्टिंग हुई, सो यहाँ पे आ गया प्रेजेंट बिट, यहाँ पे आ गया पास्ट बिट, और ये 0 था. सो नाउ व्हाट विल हैपन, माय C1 विल आल्सो यील्ड 1 एंड C2 विल आल्सो यील्ड 1. ठीक है, 1 0, C2 बन गया 1, 0 1 0, C1 बन गया 1. सो फॉर 0 आई एम ट्रांसमिटिंग 1 1. नेक्स्ट, when 1 enters, the last one enters. When the last one enters, my data becomes 1 0 1.
So what will happen? My C1 is now 0 and my C2 is equals to 1. तीनों को XOR किया तो 0 आया, लास्ट के दो को XOR किया तो 1 आया. So for the last one I am transmitting 0 1. ठीक है, यानी हर बिट के लिए हम 2 बिट ट्रांसमिट कर रहे हैं एंड दैट टू इन अ कन्वोल्यूशन कोड. सो क्लियर है क्यों हम बोल रहे हैं 5 बिट्स? क्योंकि 5 बिट्स स्टोर हो रही है और उन पे डिपेंडेंट है हमारा कोड वर्ड. इज इट क्लियर? इफ क्लियर है देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज हम डिस्कस कर सकते हैं ये चीज. एनीवन कैन कमेंट. इज इट क्लियर? नो क्वेश्चंस. ये क्लियर है बात कि क्या बोल रहे हैं? ओके, सो कन्वोल्यूशन कोड बात समझ में आ गई कि हम लोग सीक्वेंशियली चलते जाएंगे. ठीक है, तो इन शॉर्ट एनकोडर हैज अ मेमोरी. ठीक है, एंड सो ऑन. रिमेंबर दिस, कन्वोल्यूशन कोड एनकोडिंग इज डन ऑन अ कंटिन्यूअस रनिंग बेसिस, यानी कंटिन्यूअस मैनर में चलता जाएगा रादर देन बाय ब्लॉक्स ऑफ के बिट डेटास. ओके, सो याद रखेंगे ये चीज. Now representing codes by a code vector, we will be using some terminologies and that is important. So let's start with the terminologies. First is Hamming distance. The Hamming distance between two code words is the number of bits by which they differ from each other. Like for example, there are two code words, x is equals to 101 and y is equals to 110. तो ये दोनों बिट्स दो जगहों पे चेंज कर रहे हैं. So I will be saying that the Hamming distance will be 2. Like Hamming distance will be 2. जैसे कि for example I am taking a 000 as a one code word and 111 as another code word. I will be saying that these two code words have a Hamming distance of 3. Okay, so number of bits by which they differ. Code की strength, the code strength depend upon the minimum Hamming distance. Okay, so as the dmin becomes high, the number of bits that can be corrected or detected will go high. Okay, so ज़्यादा से ज़्यादा dmin पढ़ाओगे, so number of redundant bits will be increasing and that will increase the correction capabilities. The codes can be mapped into n-dimensional grid. जो code words हैं उनको समझने के लिए we can use a n-dimensional grid. What we are talking about is k bit जा रही है एक encoder में, that is known as a n, k encoder, and n bits come out. Okay, k bits and n bits come out. Okay, so I will be using encoder. I will be using code word for n bits and data bits for k bits. जब हम डेटा बिट्स की बात कर रहे होंगे यानी हम मैसेज की बात कर रहे होंगे. जब हम कोड वर्ड की बात कर रहे होंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द कोडेड डेटा that is the output of channel coder. So इनको यूज करने के लिए we can use a n-dimensional grid. Suppose 3-bit repetition code है. 3-bit repetition code की हम जब बात करते हैं, what is 3-bit repetition code? A 3-bit repetition code means we will be transmitting 0 by 000 and 1 with 111. यानी हर बिट को रिपीट करो 3 times. Okay, so in this the black dots are the code words. But what happens is यहाँ पर n है, that means हमने 3 यूज किया. यहाँ पे k क्या है? K is 1. So for 2 bits I have made 8 code words. For 2 bits there are 8 possible code words, जिसमें से काम कितने आए? सिर्फ 2. और दोनों के बीच में Hamming distance कितना है? 3 का. The Hamming distance between them is 3. Okay. Similarly, there is a 3-bit parity code. अब 3-bit parity code क्या है? 2 bit तो हम भेजेंगे for the data bits. 2 bits are the data bits and the last bit makes it a even. Okay, so for example I am saying it is 000, I will be amending it with 0.
सपोज 1 1 है तो यहाँ पर 0 जोड़ दो जिससे कि कंबाइन पैरिटी इसकी इवन हो. Like it is 1 0, so I will be adding a 1 to make it a even parity. Okay, so ये भी एक methodology है for representing. इसमें एक bit हम use कर रहे हैं redundant, so the dmin between the two bits, यहाँ पर black bit है, यहाँ bit ये है, so the dmin between the two bits will be, इन दोनों के बीच में dmin कितना है? The dmin between these two, so it will be 2. One change, another change, and there is a 2. Between this and this, the distance, Hamming distance will be 2. Between this and this, Hamming distance will be 2 again. And between this and this, Hamming distance will be 2 again. Okay, so if I talk about them, इसकी कैपेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है वो 2 है, इसका डिस्टेंस जो है वो 3 है. ओके, जो ब्लैक डॉट्स है दैट रिप्रेजेंट्स द वैलिड कोड वर्ड्स, या जो कोड वर्ड्स हम यूज करने वाले हैं, एंड जो कलर्ड डॉट्स हैं या वाइट डॉट्स हैं, दे आर नॉट बीइंग यूज्ड. सो फर्स्ट ये था टर्मिनोलॉजी. कोड वर्ड इज द n बिट एनकोडेड ब्लॉक ऑफ बिट्स जो हम बात कर रहे थे. हेमिंग वेट, जब हेमिंग वेट की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन जीरो एलिमेंट्स, यानी कोई भी कोड वर्ड है, any code word is there, suppose I am saying this is a code word, okay, and I have to find the Hamming weight, so Hamming weight will be 2, the number of non-zero elements. Okay, or the other term is the distance between the code word and all zero vector. अब same मतलब ये हो गया, all zero and this is my code word, तो इन दोनों के बीच में Hamming distance कितना है? 2. So यही definition कहती है कि the distance between the code word and all zero code word is also known as Hamming weight. ठीक है, तो आप जिस तरह से चाहो उस तरह याद रख लो. For me, the best way of remembering it is the number of non-zero elements. We will be using all these terminologies in our syllabus, so it's better to clear it out. Smallest distance between any pair of codes. Okay, and there is another term, code rate. Code rate or code efficiency is the ratio of number of bits of the message divided by the number of bits of the coded data. यानी 3 bit के लिए suppose we are using 7, suppose I am saying there is a code word n comma k 7,4. This is n comma k. So I am transmitting 7 bits for every 4 bits. यानी 4 बिट जब आता है डेटा, so I am transmitting a 7 bit. So code efficiency कितनी हो गई? 4/7, क्योंकि काम की कितनी थी? 4, उसमें हमने 3 बिट ऐड करके मेक बना दिया उसको 7. So to total bits that I am transmitting is 7. रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 4 की, so I have decreased the channel efficiency. तो वही इसको हम कहते हैं code rate or the code efficiency. ठीक है, n k comma n, k by n. Let's take an example, simple example है, just to revise what we have studied till now. Okay, so let's discuss. Simple, a channel coding system applies this 0001 and this for encoding 1 and 0. यानी हमारा k क्या है? What is our k? K is equals to k is equals to 1. भाई मैसेज तो हमारा 1 बिट का है. n कितना है? n is equals to 5. ठीक है, सो इसकी कोड रेट कितना हो गया? इसका कोड रेट कितना हो गया? इसका कोड रेट कितना हो गया? 1/5. कहाँ है क्लास? कहाँ है क्लास? Are you getting it or not? Yes, sir. Yes, okay. So what is the minimum Hamming distance between the codes? Minimum Hamming distance कितना है? Minimum Hamming distance कितना है? पहले bit change, second bit change, third bit change, fourth bit change. तो minimum distance is 4.
ओके, हाउ मेनी कोड बिट एरर्स कैन बी डिटेक्टेड बाय द कोड, अभी ये डिस्कस नहीं किया, आई विल बी लीविंग दिस आउट, आई विल बी कमिंग बैक अगेन. द रिसीव कोड बिट इज 0, कैन इट बी करेक्टेड बाय द डिकोडर, ये दो पार्ट्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट स्लाइड, 2-3 स्लाइड्स में. ठीक है, नाउ कमिंग टू दी रिडंडेंसी फॉर एरर करेक्शन, कितनी रिडंडेंट बनाए, कितनी बिट्स ऐड करे, ऐसा तो नहीं कि 100 बिट ऐड कर दे तो बस फायदा हो जाएगा. सो वी मस्ट बी रिक्वायरिंग कि इफ इतनी रिक्वायरमेंट है सो इतने रिडंडेंट बिट्स ऐड करें. ओके, सपोज आई वांट टू मेक माय कोड flexible and make it, give it a capability of detecting and correcting one bit. Okay, so how many redundant bits I have to add? So this will be discussed in the next 2 slides. So my motive is to determine the minimum number of check bits, yeah, redundant bits, to detect and correct t number of errors. यानी हम चाहते हैं t नंबर ऑफ एरर्स को करेक्ट और डिटेक्ट कराने के लिए तो कितनी नंबर ऑफ चेक बिट्स ऐड करें. ओके, सो वी नो दैट फॉर n द टोटल नंबर ऑफ कोड वर्ड्स विल बी 2 to the power of n, ये तो पता ही है हमको, एंड दैट शुड बी असाइंड टू 2 to the power of k. यानी वी हैव, हमारे पास 2 to the power of k मैसेज बिट्स है, मैसेज सिंबल्स हैं, जिनको हम, हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी 2 to the power of n की. 2 to the power of k सिंबल्स को हमको भेजना है. यानी सपोज हमने कहा, अभी पीछे ही देखा था कि सपोज 3 बिट रिपीटिशन कोड, 1 है 0 है, 1 को हमने ट्रांसमिट किया 111 से, 0 को ट्रांसमिट किया 000 से, बट ये दो तो काम के बिट्स है, टोटल 6 और सिंबल्स भी तो बने हैं. भेजना से सिर्फ 2 सिंबल 1 and 0, बट कोडिंग करने के बाद इट बिकम्स 8 symbols, 2 to the power of 3, that is 8 symbols. So what we are saying is that we have generated more number of code words as compared to the message bits. So कौन-कौन सी यूज करनी है, क्या करना है, that will be discussed. Suppose I am transmitting a code word, data word di by using any one of the code word ci. इनमें से 2 to the power of n में से हमने कोई भी एक उठा लिया और बना लिया ci. Okay, so if channel error नहीं होती तब तो ci रिसीव हो जाता, बट बिकॉज देयर आर चैनल एरर्स इट विल बी रिसीव्ड एज अ ci बार. कुछ गलती हुई और वो ci बार बन गया. ओके, सो if the channel causes an error of t or fewer bits, the ci will lie somewhere in the hemisphere. I am talking about the hemisphere. Let's talk about this. In the repetition code जो अभी हमने बात करी थी, in the repetition code that we have talked earlier, if I can say there are two symbols, एक सिंबल है 0 and another symbol is 1. दोनों को हम लोगों ने एक स्फीयर का सेंटर बना दिया, बिकॉज हर कोड वर्ड अपना एक स्फीयर बनाएगा. सो इसका एक स्फीयर ये हो गया, इसका स्फीयर ये हो गया. ठीक, अब हम लोग डिटेक्शन के समय पे लगाएंगे मेजॉरिटी रूल. आई विल बी यूजिंग अ मेजॉरिटी रूल फॉर डिटेक्शन. मेजॉरिटी रूल क्या कहता है, इफ 2 or more bits are 0, it will be detected. 2 or more than 2 bits are 0, then it will be detected as 0. If 2 or more bits are 1, it will be detected as 1. So 000 is a valid 0, 001 will also be a 0, 100 will also be 0, and 010 will be mapped into a 0. यानी इसका वैलिड कोड, बट इनमें से कोई और भी आता है, सो आई विल बी सेइंग कि ये भी 0 की तरफ मैप करेगा. हम लोग मैक्सिमम रूल लगा रहे हैं कि मैक्सिमम जो भी होगा उसको हम लोग 0 की तरफ मैप करेंगे. सिमिलरली 1 के केस में ये था वैलिड कोड वर्ड, हमने वैलिड कोड वर्ड था 0 के लिए 000 एंड 1 के लिए था 111, राइट. सो ये तो था, बट क्योंकि मेजॉरिटी रूल लगा रहे हैं, सो 110 विल आल्सो बी मैप टू 1, 101 will also be mapped to 1, and 011 will also be mapped to 1. Agreed? ठीक है. So in this case यहाँ पर जो errors हैं, एक बिट की error हुई, if there is a one bit error, यहाँ पर कोड को correction capability available है. Agreed?
एक बिट गलत होती तब तो सही है. इफ देयर इज वन बिट एरर, हम कह सकते हैं इट कैन बी करेक्टेड, क्योंकि चेक कर सकते हैं यहाँ पर ये गलत बिट थी, ये गलत बिट थी, ये गलत बिट थी, बट इट कैन बी करेक्टेड. बट व्हाट हैपेंस इज इफ दो बिट गलत हो गई, if दो बिट गलत हो गई, suppose I am saying 11 was transmitted and I received 100. जब 100 रिसीव होगा तो डिटेक्शन क्या कहेगा कि 2 जीरो है, यानी इसको हम डिटेक्ट करेंगे जीरो की तरीके से. भेजा था हमने 1, रिसीव किया 0, तो गलती हो गई, यानी हमारे इवन वी हैव एडेड रिडंडेंट बिट्स, फिर भी ये गलत को सही नहीं कर पाया. ठीक है. सो हियर देयर इज अ लिमिटेशन दैट इट कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट ओनली 1 बिट्स. सो ये कैसे फाइंड आउट किया गया? फाइंड आउट ऐसे किया गया कि हर एक कोड वर्ड का अपना एक स्पीयर होता है. उस स्पीयर के अंदर वो सारे कैरेक्टर्स लाई करते हैं जो कि उससे टी एरर्स की लिमिटेशन में होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एरर कैपेबिलिटी थी 1 की, तो 1 तक के जितने भी गलतियां होती वो इस स्फीयर के अंदर लाई करते, और जो भी स्फीयर के अंदर लाई करते दे कैन बी मैप्ड इनटू द सेम सेंटर दैट इज 0. सो एक स्फीयर है जिसमें कि सेंटर इज C, और वो टी एरर को करेक्ट कर सकता है, टी एरर्स को करेक्ट कर सकता है. सो आई विल बी सेइंग इट हैज अ स्फीयर विद अ एरर विद अ रेडियस ऑफ T. सिमिलरली दूसरा कोड है D कह लेते हैं, उसके पास भी अपना एक स्फीयर है विद द सेम करेक्शन कैपेबिलिटी ऑफ T. ठीक, दोनों T को कर सकते हैं. सो द मिनिमम डिस्टेंस विल बी, ये T गलतियों तक कोई भी होगा तो इसके अंदर लाई करेगा, ये T गलतियां तक कोई भी होगा तो इसके अंदर लाई करेगा, और मिनिमम डिस्टेंस सेपरेशन का मान लेते हैं 1, क्योंकि ओवरलैपिंग हुआ तो व्हाट विल हैपन, ओवरलैपिंग हुई then what will happen, we will be confused whether to map it as C or D. ठीक, अभी इसको एग्जांपल से देखते हैं. So I will be saying my formula will be T plus 1 plus T, that is 2T plus 1. यानी dmin should be minimum of 2T plus 1 to give our code words a capability of T correction and detection. ठीक है. सो यही से फॉर्मूला बना, दिस इज 2T plus 1. इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पर हमने डिस्कस किया था. सो हियर लेट मी टेक दिस एग्जांपल अगेन. हियर द dmin is equals to 3. dmin is equals to 3. यदि मुझे पता करना है कि इसकी कितनी एरर करेक्शन और डिटेक्शन कैपेबिलिटी है, सो आई विल बी यूजिंग द फॉर्मूला dmin is equals to 2T plus 1 is greater than or equal to 2T plus 1. So T will be maximum of 1. T will be a maximum of 1. चलो, तो T 1 है, यानी एक सेंटर C था, सॉरी 0 है, 1 है, and I will be drawing a sphere with a 1 radius of 1. तो कोई भी यदि एक बिट की गलती के संग होता है तो वो इसी स्फीयर के अंदर लाई करेगा, वो स्फीयर के लाई करेगा, एंड सो ऑन. 8 बिट यूज हो गया. बट व्हाट हैपेंस इज, यदि हमने मान लो लिया ऐसा कुछ, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हम 0 को ट्रांसमिट कर रहे हैं 4 बिट से, 4 रिपीटेशन बिट से, और 1 को ट्रांसमिट कर रहे हैं 1 1 1 1. ठीक है, राइट. सो dmin कितना है, dmin कितना है, dmin कितना हो गया 4. सो T विल बी इक्वल टू 1. ट्रू तो नहीं हो जाएगा T इज इक्वल टू 2 और T इज इक्वल टू 1. फॉर्मूला 2T plus 1. ओके 1. चलो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. यानी हमने एक, सपोज हमने कहा कि हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया विथ अ रेडियस ऑफ 2. ठीक है, इसको पहले ऐसे वेगली देखते हैं, मेजॉरिटी रूल लगाते हैं. सो 0 के लिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
100100 1000, ये 5 में से कोई भी होता सो इट विल बी मैप टू 0। सिमिलरली 1 के लिए भी ऐसी हो जाएगा 1111 1110 1101 1011 एंड 0111। इन 5 में से कुछ भी हुआ आई विल बी मैपिंग इट टू 1। ठीक है, ये 4 विथ 1 बिट एरर है, ये 4 1 बिट एरर के साथ है। ठीक है, इतना तो सही है। बट व्हाट विल हैपन इफ डेटा इज समथिंग लाइक दिस 0011 और 0110 और 1100 और आई कैन से 1001 और 1010 और 0101, इनमें से कुछ हुआ तो 50% प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो सकता है, 50% प्रोबेबिलिटी है वो 1 हो सकता है। सो विथ t इज इक्वल्स टू 2 की यदि हम रेडियस खींचते, t इज इक्वल्स टू 2 के संग रेडियस खींचते, स्फीयर खींचते, सो व्हाट विल हैपन इज समथिंग लाइक दिस विल हैपन। t इज इक्वल्स टू 2, ये सेंटर है, ये सेंटर है। t इज इक्वल्स टू 1 वाले के अंदर जितने भी लाई कर रहे थे वो मैप कर रहे थे इसमें। सिमिलरली यहाँ पर भी t इज इक्वल्स टू 1 के अंदर जितने भी लाई कर रहे थे वो मैप कर रहे थे करेक्टली एज 1, करेक्टली एज 0। बट इफ वो t इज इक्वल्स टू 2 गलती के संग लाई करते हैं सो इट विल बी लाइंग एट द इंटरसेक्शन, यहाँ पे कहीं लाई कर रहे होंगे। सो इट हैज 50% प्रोबेबिलिटी कि वो इसकी तरह मैप किया जाए और 50% प्रोबेबिलिटी कि वो इसकी तरह मैप किया जाए। So there is a confusion, and if there is a confusion, I will not be saying that it can correct 2-bit errors, right? हम 2-bit errors नहीं correct कर सकते। So this is what I was talking about. कि even t min is equals to 4, I can say 2. यदि 5 होता तो if it was a 5, कितनी error correction capability होती? If d min is equals to 5, 2, yes, आप स्पीयर बना के देख सकते हो। ठीक है, now talking about the relationship between n and k, सिंपल सा है, 5 मिनट लगेगा। अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि for every k bits I am generating n number of encoded bits. Okay, so what I am doing is 2 to the power of k data words हैं जिनको हम लोग ने 2 to the power n vertices बनाई है। ओके, सो कितने रिडंडेंट वर्टिसेस हैं? काम के तो सिर्फ 2 टू द पावर ऑफ k है क्योंकि सिर्फ k सिंबल्स थे। ओके, सो 2 टू द पावर ऑफ k सिंबल्स हम लोगों ने k बिट्स थे, तो 2 टू द पावर ऑफ k काम के सिंबल्स थे और 2 टू द पावर ऑफ n सिंबल्स बन गए कोड वर्ड होने की वजह से। अभी बताया था 3 में 8 बन गए थे जिसमें से सिर्फ 2 काम के थे। सो नंबर ऑफ रिडंडेंट वर्टिसेस विल बी 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 2 टू द पावर ऑफ k। अब कितने वर्टिसेस हेमिंग स्फीयर के अंदर लाई कर रहे हैं विद t एरर्स? यदि t एरर्स है, यदि 1 होता सो कितने हो सकते थे? 2 होता तो कितने हो सकते हैं? 3 होता तो कितने हो सकते हैं? सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी फाइंडिंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन विद j। ओके, सो इफ t नंबर ऑफ एरर्स हैं तो हम इंटीजर्स में चल रहे होंगे, 1 एरर भी पॉसिबल है, 2 एरर भी पॉसिबल है, 3 एरर भी पॉसिबल है, और t is greater than suppose any number 1 2 3 n कुछ भी हो सकता है। ओके, सो इफ t is equals to 4, सो स्फीयर का रेडियस है 4, उसमें 1 गलती माफ है, 2 गलती माफ है, 3 गलती माफ है, चौथे में t is equals to 4 है, चौथे में we will be, if there is no intersection with another one, I can correct up to 4. Now if I have to find कि how many number of symbols can exist, I have to use the binomials. Okay, n में से j निकालना है। Okay, so I will be saying with from 1 to t कितने symbols exist करते हैं, that is n choose j, n bits हैं जिसमें से j bits को हम choose करेंगे। Okay, and it will be summed for 1 to t, 1 गलती के लिए, 2 गलती के लिए, 3 गलती के लिए, so on t गलतियों के लिए, right? We are talking about this 1 2 3 अलग अलग रेडियस के संग। नेक्स्ट, फॉर ईच कोड वर्ड, यानी हमको हर कोड वर्ड के लिए कितने खाली सिंबल्स छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि वो सारे मैप एक ही सिंबल पे होने वाले हैं।
So for each symbol I will be leaving this amount of code words empty, क्योंकि इनमें से कोई भी आया तो वो स्पीयर के अंदर लाई करेगा, और स्पीयर के अंदर लाई करेगा तो वो एक ही कोड की तरफ मैप करेगा, ठीक है। सो इतने वेकेंट छोड़ना पड़ेगा। नाउ 2 to the power of k कोड वर्ड्स थे, इतने और छोड़ने पड़ेंगे। if we are not leaving them vacant, they will be mapping to the same symbol. Okay, so we have to, for 2 to the power of k, हर एक स्पीयर के लिए we have to leave summation of j is equals to 1 to t and j। कितने स्पीयर हैं? हर कोड वर्ड के लिए, हर एक डेटा बिट के लिए अपना एक स्पीयर है। so there will be 2 to the power of k spheres, और हर स्पीयर के अंदर ये समेशन वाली क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। so the number of code words that has to be left is 2 to the power of k into this, right? अब टोटल कितने हो गए? 2 to the power of k यूनिक जो थे, प्लस इतने वेकेंट और छोड़ने पड़ गए। so 2 to the power of k plus 2 to the power of k and so on. If I add them, I will be saying that 2 to the power of k, j is equals to 0 to t n j, n choose j। इतना हो गया। अब टोटल सिंबल्स कितने बने थे? 2 to the power of n, वो तो इससे ज्यादा ही होना चाहिए। so 2 to the power of n should be greater than 2 to the power of k, summation of j is equals to 1 to t, choose of n comma j। okay, so if I take that summation their side, I will be getting 2 to the power of n minus k, j is equals to 0 to t n j। this is the Hamming bound, this is the Hamming bound। सिंपल सी थी चीज, हमको पता है कि हर एक स्पीयर के अंदर जितने भी कोड वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं वो एक ही सिंबल की तरफ मैप करते हैं। सो हम लोग ने सबसे पहले फाइंड आउट किया यदि t कैपेबिलिटीज के संग है, सो इट विल हैव दीज नंबर ऑफ कोड वर्ड्स अवेलेबल। हर एक स्पीयर में वही होगा सेम टू सेम, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया 2 to the power of k से, एड अप किया एंड इट शुड बी लेस देन दिस। दिस इज नोन एज द Hamming bound। ओके, Hamming bound की डेफिनेशन यही है, 2 to the power of n minus k। n minus k है क्या? चेक बिट्स है, ठीक है। सो वही बता दिया गया। if this inequality becomes equality, it is known as a perfect code। जब ये कोड मैप कर जाएगा एकदम 2 to the power of m is equals to summation of j is equals to 0 to t and j, then it is called a perfect code, then it is called a perfect code, ठीक है। बाइनरी सिंगल एरर करेक्टिंग कोड्स आर कॉल्ड द परफेक्ट कोड्स। ये सब आगे डिस्कस कर लेंगे, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन लेटर। 3 फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, टू डिटेक्ट t errors we have derived the formula 2t plus 1। to detect only s errors, detect है correct नहीं है, this is correct, let me correct it, this is correct up to correct, okay, this is correction, correct up to t errors, that is 2t plus 1। ये हमने derive किया है। सिर्फ डिटेक्शन कैपेबिलिटी देनी है तो सिर्फ और सिर्फ s plus 1 होगा। s errors को यदि डिटेक्ट करना है तो सिर्फ फॉर्मूला इज s plus 1। यानी if I am saying my code word can detect 1 bit, so it d minimum should be equal to 2, minimum of 2, okay, but if 1 bit correct करना है तो d min should be equal to 3। तो करेक्शन कैपेबिलिटी देने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स ऐड करनी होती है। एंड देयर इज अनदर फॉर्मूला, सिंगलटन फॉर्मूला, सिंगलटन बाउंड, ये याद रखना है बिकॉज द डेरिवेशन इज नॉट इन योर कोर्स। सो दिस जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द डी मिनिमम शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n minus k plus 1, okay, where n is the code length, k is the data length and plus 1। So I will be discussing it again in the next part with an example कि कैसे क्या हैमिल्टन बाउंड का कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, and so on। This was all about the first lecture. We will be starting with the linear lecture in the second lecture. Okay, any doubts regarding this you can ask। Hamming bound derivation again, if you have time I can start here only, otherwise in the next lecture, whatever you want, I will be sharing the recording। Hamilton bound derivation, Divyanshu, if you have time I can start, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। You have lectures from 11, Divyanshu,
यू कैन Sir, no टर्न ऑन योर lecture. नो लेक्चर। आई कैन बस 5 मिनट और दो तो क्लियर कर देता हूँ क्या चीज हाँ बोल रहा सर, हूँ। yes sir, yes sir. ठीक है, चलो। Those who want to leave, they can leave the session. It is not meant. चलो यहाँ से देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा इसको ब्लैंक पेज में लेते हैं, एक सेकेंड इसको हटाओ। एक सेकेंड पेज इंसर्ट कर दूं मैं। ओके, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज, इसको अभी हटा देते हैं। हाँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखते हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल जो हमने लिया था, दैट वाज अ रिपीटिशन कोड। 0 को हमने लिया था 000 की तरह और 1 को लिया था 111 की तरीके से। ठीक है, सो इसमें हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया था, 0 का स्फीयर देखो, हमने मेजॉरिटी रूल लगाया था, यानी 0 तो इसका वैलिड कोड वर्ड था, बट इफ 0001 0001 010 100 इनमें से भी कोई एग्जिस्ट करता था, सो इट मस्ट लाई इन द स्फीयर। ठीक है, इफ इनका खुद का अपना एक स्फीयर होता, यदि ये खुद एक वैलिड कोड वर्ड होते, देन व्हाट विल हैपन इज ये 0 की तरह भी मैप करते और किसी और के तरीके से भी कोड वर्ड की तरह मैप करते, राइट। सो हमको क्या कहना है, हम ये कह रहे हैं कि दीज कोड वर्ड्स मस्ट बी लेफ्ट वेकेंट, इनको खाली छोड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे एक एम्बिग्विटी हो जाएगा। मान लो कि हमने कहा कि मेजॉरिटी 0 होगा तब हम 0 की तरह मैप करेंगे, मेजॉरिटी 1 होगा 1 की तरह मैप करेंगे, बट किसी और यूजर ने 001 को मैप कर लिया है एज सपोज C या D, कुछ भी एक नंबर है, तो क्या होगा जब 001 आएगा तो उसने 0 भी मैप कर लिया और उस C और D की तरह भी मैप हो रहा होगा, राइट। सो हम एम्बिग्विटी बचाने के लिए क्या कहते हैं, जो कोड वर्ड्स एक स्फीयर के अंदर लाई करते हैं, एक स्फीयर के अंदर लाई करते हैं विथ टी रेडियस, यानी एरर करेक्शन कैपेबिलिटी जो है उसकी टी रेडियस, उन सबको यूज नहीं करना चाहिए, दे शुडंट बी यूज्ड। ठीक है, सो हमने कहा कि एक स्फीयर है, उसके अंदर कई स्फीयर है, एक गलती वाला स्फीयर, 2 गलती वाला स्फीयर, 3 वाला, एंड सो ऑन टिल टी एरर कैपेबिलिटी। ठीक है, सो इन सारे स्फीयर्स में लाई करने वाले, जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के अंदर लाई करने वाले जितने भी कोड वर्ड्स हैं, दे शुड बी लीव्ड वेकेंट। यदि वेकेंट नहीं छोड़ा तो क्या होगा, गलतियां रिपीट होगी। जैसे कुछ इस तरह की चीज हो गई, एक कोड वर्ड 2 के अंदर लाई कर रहा है यहाँ पर, तो ये इसकी तरह भी मैप कर गया, इसकी तरह भी मैप कर गया, यूजर डजंट नो वेदर टू मैप इट एज 0 और 1, राइट। सो इसके अंदर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ऑल दी करेक्शन कैपेबिलिटी जो कि 1 के अंदर हो, इसके अंदर n में से 2 को चूज कर लो, 2 गलत वर्ड्स को, इसके अंदर n,3 एंड सो ऑन। तो t के लिए आई कैन से इट विल बी j इज इक्वल टू 1 to t, n में से j चूज कर लिए, मतलब n चूज 1, n चूज 2 एंड सो ऑन, समेशन सारे के सारे को ऐड कर लो, राइट। ये हो गया एक स्फीयर के लिए। जैसे 0-1 जब ट्रांसमिट कर रहे थे तो 2 स्फीयर थे, जब 0-1 ट्रांसमिट कर रहे थे तो 2 स्फीयर थे, यदि k बिट डेटा है तो टोटल 2 to the power of k स्फीयर्स होंगे, अग्री। यदि 2 बिट का डेटा है तो 0-0 के लिए एक स्फीयर, 0-1 के लिए एक स्फीयर, 1-0 के लिए एक स्फीयर एंड 1-1 के लिए एक स्फीयर। ठीक है, तो हर एक के लिए अपना एक स्फीयर होगा, तो हर एक के लिए हमको इतने ही खाली बिट्स को छोड़ने पड़ेंगे, अग्री करते हो तो, राइट। हर के लिए इतने ही खाली छोड़ने पड़ेंगे, यानी टोटल कितने कोड वर्ड्स को खाली छोड़ेंगे, 2 to the power of k into this। ओके, अब आते हैं आगे। अब हमने इंपॉर्टेंट कोड वर्ड्स थे 2 to the power of k, और रिक्वायरमेंट की वजह से, एम्बिग्विटी कम करने की वजह से हम लोगों ने इतने और ऐड कर दिए कि इनको खाली छोड़ना है।
इनको हमको खाली छोड़ना है, ठीक। सो इनको यदि हम ऐड किया जाए तो इट विल बिकम 2 to the power of k summation of j is equals to 0 to t n choose j, right? So these number of code words, ये खाली code words जिनको vacant छोड़ना है, these must be vacant, और these are the center of spheres. Can I say this center of spheres? क्योंकि ये तो कोड वर्ड ही है, जो काम के कोड वर्ड है, और आई कैन से वैलिड कोड वर्ड्स, वैलिड कोड वर्ड्स, ठीक। सो इतने हो गए हमारे टोटल। टोटल कितने बनते हैं? n कोड, n बिट्स का था हमारा एनकोडेड डेटा, n बिट का कोड वर्ड डेटा है, तो यानी 2 to the power of n यूनिक सिंबल्स बनते हैं, यानी 2 to the power of n unique symbols should be greater than or equal to 2 to the power of k summation of j is equals to 0 to t nj, j is equals to 0. Okay, taking this here I will be getting 2 to the power of n minus k should be greater than or equal to summation of j is equals to 0 to t n choose j. Agree? Do you agree with this or not? Yes, sir. Sir, made sense. Thank you, sir. Okay. बोलोगे एग्जांपल भी लेके दिखा दूं अभी कोई? No, sir. Fine, fine. What, fine? Okay. Fine. Okay. Any other queries you can ask? Please again explain that cube part. Which cube part? You were taking. मैपिंग, ये Yes, sir. एक सेकंड, कौन सी की बात कर रहे हो? एक सेकंड, you are talking about let me discard it. ये इस चीज की क्यूब की, which one? Yes, sir. लोकेश? Yes, sir. This one. This one. ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि वी कैन रिप्रेजेंट, ये रिक्वायरमेंट अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बिकॉज व्हेन वी आर डीलिंग विद द हायर रेडिक्स सिस्टम्स देन इट इज रिक्वायरमेंट। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि एक प्लेन में, जैसे एक लाइन में यदि कोई भी चीज होगी तो उसकी गलतियां सिर्फ एक बिट की होगी, लाइक इन दिस देयर विल बी अ 1 बिट डिफरेंस। देखो 001 010 01। सिमिलरली एक प्लेन में जो चेंजेस होंगे वो 2 बिट की चेंजेस होंगे। सिमिलरली हियर 110 एक प्लेन चेंज, 101 2 बिट चेंज, ठीक है। एंड देन हियर 011 अगेन 2 बिट चेंज। एंड व्हेन वी आर गोइंग फॉर द प्लेन दिस 3 डायमेंशनल एरे, गलती जो होगी वो दिखाई दे रही है 111, ठीक है। सो ऐसे एक बना लेते हैं, एक n डायमेंशनल हाइपर, क्या बोलते हैं, हाइपर पॉलीगन, n डायमेंशनल हाइपर पॉलीगन, दिस जो कि जिसके हर एक वर्टिसेस पे आपका एक कोड वर्ड है। क्यों कह रहे हैं हम ये n डायमेंशनल? क्योंकि इफ n के कोड्स हैं सो इट विल बी हैविंग 2 to the power of n कोड वर्ड्स। सो n डायमेंशनल की बात करेंगे तो उसके पास 2 to the power of n वर्टिसेस होंगी, ठीक है। हाइपर क्यूब की बात कर रहे हैं, सो n नंबर ऑफ बिट्स हैं तो 2 to the power of n उसके वर्टिसेस होंगी, और हर एक वर्टिसेस पे अपना एक कोड वर्ड होगा, ठीक है। अब उस कोड वर्ड पे हम लोग अपना एक स्फीयर बना लेंगे, ठीक है। स्फीयर बना लेंगे, जो वैलिड कोड वर्ड्स होंगे, जितने स्फीयर होंगे, वो स्फीयर की रेडियस कितनी रखेंगे, जितनी एरर करेक्शन कैपेबिलिटीज हैं। इफ वो स्फीयर ओवरलैपिंग कर रहे हैं दैट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम, द कोड वर्ड इज नॉट बीइंग करेक्टली मेड। इफ ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं, फाइन एंड गुड, इट विल वर्क। इसलिए बाकी ये कोई चीज नहीं है। वी यूज दिस फॉर रिप्रेजेंटेशन बट इन योर सिलेबस इट विल नॉट बी यूज्ड, ओके, बिकॉज तुम्हारे कोड में सिर्फ लीनियर कोड्स है, साइक्लिक कोड्स हैं, इनमें भी यूज नहीं होने वाला, एंड कन्वोल्यूशन कोड आल्सो डजंट यूज इट। Okay, sir. Got it. ओके, और कोई क्वेरी? एनी अदर क्वेरीज? 19 students are there, मेरे ख्याल से ज़्यादातर तो छोड़ के चले गए। Okay, so I will be sending the recording, I will be posting it on the classroom itself. Okay, let's meet on Wednesday.
Thank you.